Hi everyone. It's a wonderful evening in Bangalore. Very pleasant weather. How are you all doing? Hi Shravani. Hi Shilpa. Good evening. Good evening. Hi Brajesh. Good evening. So guys, why don't you put in the comments the places that you are connecting from? So right now I'm connecting from Bangalore. Hi Bhagya. Hi Mokshada. Hi Ramya. Good evening. Good evening everyone. Hi Sheena. Hi Brajesh. Hi Naveen. Oh, great. So many people from Bangalore, Bagalkot, Hyderabad. Wow, very nice. I think we are good to go now. So, first of all, I want to share that it's my, privilege to be one of the speakers for Reskill Nation. And so today I'm going to share a story which is about me, myself. And this story is going to be in two parts, my first inning and my second inning. So basically, pre-skill nation, life, and after that. Okay. So, like I told you, I'm Smriti. I'm connecting from Bangalore. So, I'm in Bangalore for last 5 years, and I'm married in a Punjabi family, but I belong to Himachal. So, I'm from a very beautiful and a small hill station in Himachal, Rajgarh, right? So that's where my whole things, initial few days, I bringing up all that happened in Bangalore only. I mean Rajgarh only. So मेरे जो parents थे, both of them were government employees at a good position, but they were very particular about studies. जैसे बहुत सारे middle class families में होता है, lot of stresses, on पढ़ो 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 पढ़ो. तो कुछ इस तरह का माहौल था मेरे घर का भी. And all of us, like I have younger brother and a younger sister, so all of us, we used to be kind of toppers, and not just in studies, almost in all the fields we were like among toppers. तो उस तरह का time बीत रहा था. Then when I finished my 10th standard, so a big question came in my parents' mind, ki, what next? Now where do they see the bright and that the secured future of our daughter? So they sent me to Shimla, बिकॉज़ राजगढ़ में तो इतने अच्छे स्कूल्स थे नहीं, और प्लस वन प्लस टू के लिए तो उन्होंने मुझे शिमला भेज दिया. शिमला में भी बेस्ट टेस्ट स्कूल से प्लस वन प्लस टू किया. और फिर व्हाट नेक्स्ट? अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द ब्राइट एंड सिक्योर फ्यूचर ऑफ माई डॉटर? सो देन दे सेंट मी टू चंडीगढ़. चंडीगढ़ में आई गॉट एडमिशन इन टू वन ऑफ द बेस्टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, पंजाब यूनिवर्सिटी. तो वहाँ पे मास्टर्स किया. इट वॉज़ अ ह्यूज यूनिवर्सिटी, ब्यूटिफुल यूनिवर्सिटी, spread out in acres and acres of land, and it includes almost two sectors of Chandigarh. So a wonderful university, great professors. Did my masters there. Then again the next thing, where is the next? Where do they see the bright and secure future of our daughter? So then they decided on UGC NET exam. So some of you might be from life sciences background. It's a very important exam in life sciences background. So not easy to crack, but I worked hard and I cracked it. So UGC NET exam भी हो गया. अब what next? Now my parents wanted me to go for PhD, but this was the time when I said ना ना ना, PhD नहीं. So I said कि मेरे को ये जॉब करनी है. तो I gave interview and I got through, into that job. So that job was like one of the bestest job in our life sciences background. So the company was QSI Parexel,
वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इन इंडिया। तो अब वो सब जॉब लग गई। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अभी उस व्हाट नेक्स्ट पे थोड़ा सा विराम लग गया, थोड़ा सा फुल स्टॉप लग गया, बिकॉज नाउ इट वाज लाइक कि अच्छा अब तो सेटल्ड है। सारी जो मेहनत कर रही थी, एक मिडिल क्लास फैमिली में जो चलता है मेहनत वगैरह जो होती है वो इसी के लिए होती है, ये कोई अच्छी जॉब करेंगे, आईएएस बनेंगे या इंजीनियर या डॉक्टर बनेंगे तो एक अच्छी जॉब है, सेटल्ड फ्यूचर। तो उनको भी ऐसा लगे कि अब तो सेटल्ड है लाइफ। पर नाउ आई वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस सेटल्ड लाइफ, कि सेटल्ड लाइफ कैसी थी, किस तरह की थी मेरी। सो जब जॉब स्टार्ट हुई तो सो कॉल्ड कि यार वाओ यार स्मृति, पैराक्सल में हो गया, ग्रेट पैकेज। नाउ आई वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन सर्टन थिंग्स कि इस पैकेज में क्या क्या चीज़ें थी और क्या चीज़ें थी, एंड व्हाट प्राइस आई हैड टू पे टू अवेल दिस पैकेज। तो इसमें क्या क्या था? सुबह स्केड्यूल कुछ ऐसा होता था, सुबह उठती थी 6 बजे, जल्दी जल्दी मैं अपनी प्रैक्टिसेस करती थी, साधना एक्सरसाइजेस वगैरह, और माइंड में रहता था भागना है, पहुंचना है कहीं, वो कर लिया। उसके बाद जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके रशिंग टू द ऑफिस। आई हैड अ टू व्हीलर में वो 15-20 किलोमीटर जाके अपना ऑफिस पहुंच जाता था, और ऑफिस का काम किया। 8 8 घंटे काम, वरना कई बार इससे भी ज़्यादा। एंड उसको करने के बाद 7 तो बज ही जाते थे, एंड समटाइम्स इट वुड गो बियॉन्ड। And by the time I would be back in my flat, I would be literally exhausted. I would have no energy to do anything. And तो ऐसा हुआ। अभी तो शुरू शुरू का टाइम था, चलता गया, but then weeks in week out, months in month out, and then years started passing and I was like oh my god, यही schedule चल रहा है इस पैकेज में। तो जो बहुत सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं, दिस इज़ समथिंग दैट आई डिड नॉट वांट, एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। जैसे इतना अच्छा पिक्चर दिखाते थे ना, सेटल जॉब, या पढ़ो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कोई बहुत अच्छी जगह जॉब करने वाले हो, और जॉब लग जाती है तो उसके बाद तो लाइफ सेट सेट होता है। बट आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, भाई अरे भाई ये कहाँ पे, मतलब ये क्या हो रहा है ना। सो आई हैड नो टाइम फॉर माई सेल्फ, एंड इट वॉज जस्ट एंड सेम मोनोटोनस लाइफ। वीकेंड्स की तरफ वो होता है कि वीकेंड्स पे थोड़ा टाइम मिलेगा, और वीकेंड्स में भी लॉन्ड्री वगैरह उसमें ही टाइम जा रहा था। So then, what next? Now, actually, one good thing that happened through all this thing was that one day I was just wondering कि यार कितने सालों से मैं घर से बाहर हूँ, more than a decade. Actually, it was 15 years. 15 साल से वो प्यारा सा होम टाउन छोड़ के आई हूँ। 15 साल से बाहर का खाना खा रही हूँ, कभी पीजी का, कभी हॉस्टल मेस का, और अभी कुक का खाना खा रही हूँ। और वो भी ठंडा खाना पड़ता है क्योंकि कुक सुबह बना के चली जाती है, और मुझे लंच और डिनर का में वही खाना पड़ता है। सो कितने टाइम से ये चल रहा है, कितने टाइम से अपने लव्ड वन से दूर हूँ। सो इन 2016 आई गॉट मैरिड, एंड नाउ माई हस्बैंड इज़ इन बैंगलोर, आई एम इन चंडीगढ़, माई इन लॉज आर इन अमृतसर, एंड माई पेरेंट्स आर इन हिमाचल। सो इट वॉज नॉट मेकिंग सेंस टू मी यार, क्या सिर्फ द होल लाइफ वॉज रिवॉल्विंग अराउंड वन जॉब। And so then I quit the job in Chandigarh and I came to Bangalore. अब बैंगलोर में क्या हुआ, बैंगलोर में सोचा यहाँ पे देख लेते हैं जॉब। सो यहाँ पे जो जॉब थी, तो यहाँ पे आईटी पार्क्स बहुत दूर दूर थे, पहली चीज़। और दूसरा ये कि यहाँ का जो ट्रैफिक है, अगर कुछ लोगों को पता होगा, ये भयंकर है। देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड भयंकर, भयंकर ट्रैफिक है। सो आई वाज जस्ट मेकिंग सम कैलकुलेशन कि अगर मैंने यहाँ जॉब शुरू कर दी तो 8 से 9 घंटे जॉब में, और इसके बाद जो 3 घंटे वो ट्रैफिक में, तो इसके बाद मैं घर पहुंचूंगी, खाना बनाऊंगी, तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि मैं तो गायब ही हो जाऊंगी ऐसे स्केड्यूल में। सो ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन, एंड देन दे से ना कि व्हेन कुछ अच्छी चीज़ जो ये हुई ना, कि मुझे कुछ क्लैरिटी आने लगी कि मैं चाहती क्या हूँ लाइफ में, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई वांट इन माय लाइफ, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आई डू नॉट वांट इन माय लाइफ। सो दोज थिंग्स गेटिंग क्लियर फॉर मी। तो ये हुआ कि आई वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम ऑन माई हेल्थ। ये दिमाग में आने लगा यार, जो भी स्केड्यूल हो, मैं जहाँ भी रहूँ, कोई भी जॉब करूँ, मेहनत से नहीं मैं कतरा रही हूँ, बट मैं जो भी करूँ वो ऐसा करूँ जहाँ पे मैं खुद को थोड़ा टाइम दे पा रही हूँ, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रख पा रही हूँ, ढंग से खाना खा पा रही हूँ, है ना, और अपनी फैमिली से दूर नहीं हूँ, फैमिली के साथ हूँ।
So all these things were there. So they say na ki when student is ready, master appears. And something like this happened with me with Reskill Nation. So मेरे husband उनके friend के through we got to know about Reskill Nation. And when I got to know, उन्होंने थोड़ा सा कुछ बताया था, आइडिया दिया था. And I started exploring this page. And then I went through different stories of different ladies. अलग अलग लेडीज़ अपनी स्टोरीज बता रही हैं. और क्या इंटरेस्टिंग लगा वो ये कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरी कहानी बता रही है, मेरी ही कहानी है, किसी और की ज़ुबानी है. ऐसा लगा. आई कुड रिलेट टू सो मेनी ऑफ माई पेन पॉइंट्स एंड आई कुड रिलेट टू सो मेनी अदर थिंग्स कि यार ये लेडीज़ भी यही चाहती थी कि यार लाइफ लार्जर देन दिस लाइफ. वही 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 सेम चीज़ नहीं चाहिए कि 9 to 5. इनफैक्ट कॉर्पोरेट में 5 भी नहीं होता है, 5 से बियॉन्ड ही जाते हैं. तो वो सेम चीज़ नहीं चाहिए 9 to 7, 9 to 8 टिल द एज ऑफ 50, 60. I didn't want that. But at the same time, I also didn't want to compromise on, wealth part, earnings. ऐसा नहीं है बस आराम ही चाहिए. मेहनत भी करनी थी, बट कुछ ऐसे लगे मीनिंगफुल, कुछ ऐसा कि उस पैकेज के लिए आई डोंट हैव टू पे द प्राइस ऑफ माई हेल्थ और रिलेशनशिप्स. आई डेंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन ऑल दैट. सो आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद दिस. और क्योंकि प्यास इतनी ज़्यादा थी तो फटाफट से आई वेंट थ्रू सो मेनी ऑफ केस ऑल द स्टोरीज ऑफ द लेडीज़. और प्रोग्राम में एनरोल किया, प्रोग्राम को किया. And then that's when I made transition from this first inning to second inning of life. And I just want to throw some light on क्या difference आया. तो पहला तो ये कि I started earning from my home. अब I don't have to hit the traffic, और वो भी बैंगलोर का ट्रैफिक हर रोज़. बाकी सब मेरे अपार्टमेंट से जाती थी लेडीज़, बट आई एम सिटिंग एट माई होम एंड डूइंग थिंग्स. घूमने का मन है तो जाऊँगी, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है ट्रैफिक में जाना. सो दैट वॉज द थिंग. एंड एक दो और चीज़ें कि इसी बीच माई प्रेगनेंसी फेज केम, डिलीवरी फेज केम. तो व्हेन आई वाज इन चंडीगढ़, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी थी जो प्रेगनेंसी के दौरान दे वर कमिंग टू द ऑफिस. इनफैक्ट एक तो ऐसी फ्रेंड थी जिसकी डिलीवरी सैटरडे को हुई और वो फ्राइडे तक ऑफिस आ रही थी. और वही फ्रेंड उस वक्त मेटर्निटी लीव 3 months की ही थी. तो 3 months के बाद उसने ऑफिस शुरू कर दिया आना. एंड अभी जब मेरा खुद का बेबी हुआ, आई वाज रियलाइजिंग यार आई वुडंट वांट दैट फॉर एनी लेडी. किसी के लिए भी नहीं मैं चाहूँगी कि यार आप 3 महीने बाद, चलो अब 6 महीने की होती है, बट आई डोंट वांट कि इवन 6 महीने के बाद भी आपको उस बेबी को छोड़ के 9 घंटे 9-10 घंटे आप बाहर आ रहे हो. सो when it came, my turn came, I didn't have to go through that thing. Throughout pregnancy I was at home, और उसके बाद भी अपने बेबी के साथ ही मैं टाइम स्पेंड कर रही थी. और अभी भी आई कैन सी माई टॉडलर. आई हैव अ 1.5-year-old वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी नॉटी डॉटर. पर उसको उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, जो करती हूँ घर से करती हूँ. एंड देयर इज़ नो बॉस ओवर हेड. जैसे ऑल्दो जो जॉब में करती थी ना, बहुत अच्छा एटमोसफेयर था, बहुत अच्छे टीम लीडर्स, ऑल दैट चेन, कुलीग्स, एवरीबडी वॉज गुड. बट जॉब इज़ एट द एंड जॉब ओनली, है ना. तो रिस्ट्रिक्शंस तो होती हैं, एक बॉन्डेज होती हैं. कभी कभी आप बिल्कुल ठीक नहीं हो पर फिर भी जाना है ऑफिस, है ना. तो दिस इज़ वॉट रीस्किल नेशन एक्चुअली हेल्प मी इन. आई गॉट आउट ऑफ दैट. एक किस्म से मेरे लिए तो ट्रैप था वो, जहाँ पे भी मैं थी. So I could live a life which is larger than that life, right? And I am with my family. In-laws are also here, right? I'm not missing ghar ka khana, which I missed for so long. In fact, I missed to mention that when I was in university, by the end of 5th year I had become so much fed up of the hostel food that I started skipping meals. And this 5th year was so crucial because I had to submit thesis, and parallelly I was also going for swimming. So it took toll on my health, so much so that for more than 1 year I had to come back and just rest in my hometown Rajgarh. तो 1-1.5 साल मुझे इसलिए गैप लेना पड़ा क्योंकि मेरी हेल्थ ही गड़बड़ हो गई थी. तो आई डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट थिंग ऑल्सो कि घर का खाना मिल खा रही हूँ, है ना. देयर आर सो मेनी थिंग्स, फ्रॉम स्मॉल थिंग्स टू बिग थिंग्स. लाइक कोई गिल्ट नहीं है कि मैं कुछ घर के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ फाइनेंशियली.
small things, it has made a lot of difference, right? So I would highly urge, if there are any ladies, किसी को भी ऐसा लगता है कि if you could relate to even one pain point, or if you could relate to this thing कि living life larger than this 9 to 5 circle, है ना, तो then this is the page that you should definitely explore, the Reskill Nation platform. Go ahead, see, listen to different ladies, because every lady, the story would be different to some extent, and every person has to offer something unique. And every Wednesdays and Saturdays we are running these story sessions, heart to heart सीरीज़, जहाँ पे हम अपना एक्सपीरियंस बयान करते हैं. और जैसे आज वेंसडे है, आज हम शेयर कर रहे हैं, तो वैसे ही अभी सैटरडे को भी 11 बजे एक और ऐसी टॉक आएगी. एंड आई वुड हाईली अर्ज दैट यू डू नॉट मिस दैट, attend it at any cost. And just go ahead and grab the opportunity, go through the high value skills, so much valuable, and that too at free of cost, somebody mentoring you. Can you imagine it? The last point that I want to share is that ki one comparison that came into my mind, which I used to wonder जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, कि यार वहाँ पे इस मुकाम तक, वो जॉब पे पहुँचने तक इतना इन्वेस्टमेंट गया, पेरेंट्स के इतने पैसे लगे, टाइम इतना गया, एफर्ट इतना गया, हमारा भी और पेरेंट्स का भी, और वहाँ जाके पहुँचे जहाँ पे वो पैकेज सेट ही नहीं हो रहा था. वो लाइफ सफोकेटिंग लग रही थी एक किस्म से, अपने लिए टाइम ही नहीं था, है ना. और यहाँ एक ऐसा जगह है जो आपको ऐसे फ्री कर सकती है ना, थ्रू सच अ वंडरफुल ट्रेनिंग, एंड somebody offering you free of cost, right? So do explore it, guys. And next Saturday, let us join again, and let us see what our next speaker has to share. Okay, that was wonderful talking to you. I hope I added some value to you, and see you another time, some other time. Bye bye.